So with रनिंग के टाइम पे किस तरह की songs सुनते हो? यार इट डिपेंड्स, कभी कभी मोटिवेशन पे डोपामाइन इफेक्ट और जो एड्रेनलिन रश होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना पसंद करोगे। एक मेलनकॉली करके एक एल्बम है ऑन स्पॉटिफाई, सो आई हैव डाउनलोडेड इट एंड वो हाँ जब भी रन करता हूँ तो आई हाँ कीप इट ऑन दिस थिंग, अपना डाउनलोडेड रहता है बिकॉज यहाँ पे अभी इन माय होम टाउन वी डोंट हैव 4G, so I download the music at home and then I run and hear it. तो कभी आपके हिंदी सॉन्ग्स बहुत मोटिवेट करते हैं, जैसे कि आपका शिवाय का सॉन्ग है तो बोलो बोलो शिव, उस तरीके से, मतलब इट डिपेंड्स दैट हाउ अ म्यूजिक मोटिवेट्स, तो इट डिपेंड्स। तो तुम बताओ, आई थिंक यू आर मतलब आल्सो मुझे बीइंग, भी Spotify बहुत सही लगता है। so you are one of the Spotify listeners, right? And बोलूं भाई लाइक मैं पहले YouTube पे सुनता था सॉन्ग्स, बट अभी जब Spotify आया तो फिर मैंने डाउनलोड किया, और मतलब मुझे वही है डिफरेंस कि Spotify में ये है कि आपको वो क्या होता है कि अगर आप सेम सॉन्ग्स अगर आप सुन रहे हो तो वो वैसे ही सिलेक्शंस आपको शो करता है, ठीक है। तो वो एक बहुत सही चीज लगती है, मतलब वो एकदम एग्जैक्टली उसको पता होता है कि मैं किस मूड में हूँ अभी। सो मोस्टली अगर मैं रात के टाइम जब मैं सुनता हूँ तो मैं वो अलग अलग जो जॉनरास हैं, स्लीप है, और स्लीप में अगर उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो मैं पियानो सुनता हूँ, तो रात को बहुत बहुत वैसा होता है कि सूदिंग सा होता है, तो मुझे सही हाँ, लगता है स्पॉटिफाई yeah. So Spotify is, मतलब I remember this music app was launched last year. It was in January or February, I remember. So Spotify के साथ मेरी एक बड़ी अच्छी याद जुड़ी है, मतलब it's I have a very fond memories of Spotify because जब इंडिया में Spotify launch नहीं हुआ था, so I used to listen to Spotify. I think I've told you that time also that I used to listen to हाँ Spotify, मुझे and मुझे as याद है, हाँ yeah, मुझे so याद है कि तू था सिर्फ जो uh, तू यूज करता था, तब uh, लॉन्च नहीं हुआ था, मुझे याद है जब मैंने तुझे विजिट किया था। हाँ 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 right. हाँ, बता, They कंटिन्यू used to कंटिन्यू। come to my home. So Spotify का मैं पिछले I think 3 या 3.5 4 साल से I have been a listener to the Spotify. And Spotify से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं because I was going through a very bad phase of my life. So उस वक्त कोई इंडिया में इतनी कोई बड़ी म्यूजिक एप्लीकेशन नहीं थी जिसमें you used to get so many of songs. So हाँ when I got this, and there are different genres, there are different mood aspects. तो हर एक मूड के हिसाब से, हर एक जॉनर के हिसाब से they have kept music library according to it, and then it has a massive collection. I don't know about I think I don't know what about the India library because I found Indian Spotify application a bit different from the US based application. So there are very less number of songs. If we compare it on the international base, there is still uh, a lot of requirement needs to be there in the Indian Spotify that to update their library. So उसके साथ एक मेरी एक बहुत याद जुड़ी थी, and I still remember when this application got launched, I got my bonus. So इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ, and I was very very fascinated कि यार this application is being launched, and I've been posting it on my social media as well that Spotify is finally in India. बट जब ये आया एंड उसी टाइम पे आई गॉट माई बोनस एंड आई वाज सो मच अमेज्ड कि मेरे को सुबह बोनस आया, एंड आई थिंक शाम को आई पिक दी इनका जो अपना पेड वर्जन है, आई पेड इट दैट डे ओनली, एंड आई थिंक इट्स मोर देन 1 year I just renewed my subscription with Spotify. So yeah, I like it, but still fine. I still think that there is a lot of requirement required. By the Indian Spotify to update their libraries because उनका I think Warner Brothers के साथ भी कुछ issue था licensing को लेके, which I think it's still in processing, so I'm not sure about it, but yeah. So Ved, I have a question for you because I've been knowing you from a very long time. I think almost 7 or 8 years I know you. So uh, we share a good bond. We went to many places, and I have found one thing about you, that you have a very different liking about the genres. I mean, maybe I like glam metal, rock music, or anything one XYZ, but your taste is pretty different.
when it compares to the folk music, folklore, or maybe folklore, or maybe you can call it another genre. So I want to understand how you emerged as a person, or how you, when you first listened to the song, and then you started developing with the music. So what's your journey like? हाँ सो लाइक जब मैं छोटा था तो लाइक मैं और मतलब मेरे डैड वही पुराने पुराने सॉन्ग्स सुनते थे, मतलब किशोर दा के, और सो मैं भी वही ओल्ड सॉन्ग सुनता था. सो मैं एक ऐसा बच्चा था जो उस टाइम मतलब अपनी एज के हिसाब से मैं बहुत पुराने सॉन्ग सुनता था स्टार्टिंग में. तो स्टार्टिंग में मेरा वैसा था, बट फिर जब मैं 7th 8th में आया तो लाइक उस टाइम जब केबल लगा तो मैं इंग्लिश सॉन्ग्स मुझे सुनने को मिले. तो मैं उस टाइम मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया. तो फर्स्ट टाइम ये था कि लाइक तब मैं 50 सेंट्स को सुनता था. तो उस तरह के सॉन्ग वगैरह ना मेरा इंटरेस्ट उस टाइम डेवलप हुआ था. मैं मैंने एक बार कुछ लिखा भी था, एक बार अपनी टीचर को सुनाया था, बट पता नहीं उसको उतना अच्छा लगा नहीं, वो मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं है. बट मेरा वहां से इंटरेस्ट बना. बट धीरे धीरे फिर लाइक जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा थोड़ा वो चेंज हो गया, मतलब रैप सॉन्ग से सीधा, बिकॉज जिस तरह के लोगों के साथ मैं काम करता था जो ड्रामेटिक सोसाइटी के थे, कुछ म्यूजिक सोसाइटी के थे, तो मैं उस टाइम जब मैं उनसे मिला तो जो मुझे रिकमेंड करते थे और सुनना स्टार्ट कर दिया. मैं फिर क्लासिकल सॉन्ग्स इवेंट्स में मैं जाता था. तो वहां से मेरा फिर इंटरेस्ट वैसा डेवलप होने लगा. जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. जो ये कि कोक स्टूडियो हो गया और फिर ये फोक सॉन्ग्स हो गए. एंड देन फिर एक बहुत अच्छा बैंड था हमारे कॉलेज का, तो वो क्या था, वो जैज, वो सैक्सोफोन प्ले करते थे. तब मैंने उसके बाद फिर जैज वगैरह सुनना शुरू किया. तो अभी भी मेरा जैज में उतना मतलब इंटरेस्ट उतना डेवलप नहीं है, बट हाँ मैं कभी कभी सुनता हूँ जैज. उतना समझ में नहीं आता बट मुझे अच्छा लगता है. बट मोस्टली अगर मेरा फेवरेट अगर बोलो तो लाइक इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन फोक सॉन्ग्स, कोक स्टूडियो, इस तरह के सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ. सो या सो अभी Okay. रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मैं कुछ चैनल्स को फॉलो करता हूँ. सो लाइक अभी जिस तरह का टाइम है तो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते हो आप घर से काम करते करते. सो अभी मैं कुछ दिनों से मैं एक दो चैनल्स हैं, एपीरियन इंडी करके एक और चैनल है. सो वहां पर काफी सारे सूदिंग सॉन्ग्स हैं, तो वो मैं आजकल मैं सुन रहा हूँ. सो या दैट्स माय म्यूजिक जर्नी. Right. So, question फिर से एक want to ask you one thing, and I think जो हमारे subscribers and I think they also would like your perspective. You mentioned about listening to the piano, right? So, if I know you and me will share a very good rapport when it comes to the music. Even we talked about focusing on something relevant to the Coke studio, but not on a very large base, but yes, going to the villages, and I share that idea, which I won't be sharing here because that's still in the process mode. So I want to understand that when you mentioned about the piano thing, जैसे अभी तुमने बोला कि I listen to the calm music. So how you differentiate this calmness with the other music? I mean, everybody has their own genre. I mean, everybody has their own liking. I like, maybe while I'm going to the sleep, I like maybe I like glam metal, or maybe heavy metal, or maybe I want to listen to the Hindi song, Arjit Singh or koi Sonu Nigam, anything. So how does you compare this piano music, which is a soothing one, in comparison to the other genres or other lyrics based music? सो हर किसी के लिए ना कामनेस का एक अलग अलग मीनिंग है. सो इवन कोई हैवी मेटल सुन के भी काम फील कर सकता है. सो मोस्टली मेरा तो यही है कि लाइक पियानो म्यूजिक मुझे बहुत ही सूदिंग लगता है. और उसमें भी इंटरेस्ट मेरा इसलिए आया क्योंकि लाइक मैंने बहुत टाइम पहले एक मूवी देखी थी एमिलिया करके. सो उसमें जितने भी सॉन्ग्स थे वो सारे पियानो पे थे. सो उस टाइम मुझे बहुत ही मतलब वो सॉन्ग्स इफेक्ट करे थे. मैं आज भी कई बार मैं सुनता हूँ उन सॉन्ग्स को.
सो या मतलब ये चीज है कि लाइक आई थिंक किसी के लिए पुराने गाने सुन के भी वो काम फील कर सकता है, तो हर बंदे के लिए कामनेस एक अलग वो है, मीनिंग है, सॉन्ग्स के लिए अलग मीनिंग है। बट राइट मुझे ये राइट चीज है कि हमने मतलब एज ए जनरेशन हमने म्यूजिक में बहुत चेंजेस देखे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जब हम वॉकमैन पे गाने सुनते थे, आई रिमेम्बर और फिर उसके बाद फिर सीडी आया, सीडी के बाद फिर देन पेन ड्राइव, और अभी 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 स्पॉटिफाई। सो लाइक बहुत एक और हाँ, कैसेट्स भी थे, सो मैंने बहुत सारे कैसेट्स भी खरीदे हैं। सो सेम उस हियर टाइम सेम मैं हियर काफी खरीदा। हाँ, सो मेरे पास कुछ अभी भी पड़े हुए हैं, 6-7 कैसेट्स पड़े हुए हैं। और कई बार हम लाइक उस टाइम जब मैं लकी अली के सॉन्ग्स वगैरह सुनता था, तो मैंने वो सारे रिकॉर्ड करवाए हैं कैसेट पे, तो मैं जाता था, तो वो एक अलग एक एक्सपीरियंस है। वो आई थिंक बाकी लोग अभी के रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, नहीं मिलेनियंस, कर पाएंगे नहीं कर इस बात पाएंगे को। यू आर तो वो एक एब्सोल्युटली एक अलग ही मजा था। सो वो व्हाइल यू एक मिक्स्ड कैसेट, जो सॉन्ग्स होते थे, मिक्स्ड सॉन्ग्स होते थे, या तो आप किसी को या डेडिकेट भी कर सकते हो। तो उस टाइम हम उस तरह की चीजें हम करते थे, तो वो मुझे अभी भी वही याद आता है। और अगर यू आर मेंशनिंग अबाउट द कैसेट्स ऑडियो कैसेट्स, सो अभी भी मुझे याद है कि जब बैक इन 2005 आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 11th और 12th आई 2004 2005 आई थिंक नियर बाय दैट। तो उस वक्त एक ऑडियो कैसेट्स आती थी, सो आई हैव अ वेरी नियर बाय शॉप वेयर आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट। आई मीन एक क्रिएट लिस्ट करता था मैं पूरी की पूरी, एंड देन I used to go there and he used to charge me 1 rupees or 2 rupees per song. And 10 रुपए में मेरे को 10 गाने मिलते थे या 10 रुपए में हमें 20 गाने मिलते थे, इस तरीके से आई यूज टू गेट इट। मेरे को अभी भी याद है उन कैसेट्स में आई यूज टू सर्च। मेरे पास एक स्टीरियो प्लेयर होता था एंड उसके साथ में बड़े बड़े स्पीकर्स, वो जो मैग्नेट वाला स्पीकर यू माइट हैव सीन, जो गाड़ियों में भी उस टाइम पे लगा रहता था। तो वो स्टीरियो स्टीरियो वाला मेरे पास सिस्टम होता था। So I used to go to a market and मैं वो कैसेट एक ब्लैंक आई थिंक 20 या 10 रुपए की एक कैसेट आती थी ब्लैंक, वो हमें खरीदनी पड़ती थी। तो मैं वो खरीदता था। देन आई हैव अ पेपर, मैं उस पे पेज पे पूरे गाने लिखता था। आई रिमेम्बर लकी अली की सिफर की एल्बम थी, एंड देन उसके बाद आपके यूफोरिया का गाने होते थे। तो आई यूज टू मतलब पहले पूरा का पूरा सर्च करना। उस वक्त केबल टीवी का इतना जमाना नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। उसका केबल टीवी दूसरे तरीके से डिशेस तो होते नहीं थे हमारे घर में, एंड वी यूज्ड टू हैव सीआरटी मॉनिटर्स, राइट। एंड उन सीआरटी मॉनिटर्स में व्हाट इज यूज्ड टू बी डन कि सीआरटी मॉनिटर्स में वो डीडी नेशनल पे रात को चित्रहार या समथिंग आता था, या जी टीवी या इस तरीके से वो जो चैनल्स है उस पर गाने आते थे। तो वो गाने में वेट करते थे कि यार ये गाना आएगा, अच्छा ये गाना फेमस है, तो फिर उसको पेज पे लिख के एंड उस पे पेज पे लिख के फिर उसको पूरा हफ्ते भर 2 हफ्ते का रिसर्च वर्क करके फिर उसको कैसेट वाले के पास जाके हम देते थे। एंड उसके बाद उसके पास इतना बड़ा लोड होता था, ही यूज्ड टू से कि सर बेटा देखो 2 या 3 दिन लग ही जाएंगे तुम्हारी कैसेट को बनने के लिए, किसकी इतना इतना जल्दी तुम्हारा होगा नहीं, मेरे पास आगे 10-20 कैसेट पड़े। वो एक जमाना होता था। और आई रिमेम्बर मेरे कजन्स के पास मारुति 800 होती थी। तो अभी क्या है, अभी आप तूने भी देखा होगा वेद की, मतलब यू मस्ट हैव आल्सो सीन की मेनी ऑफ टाइम्स होली में क्या होता है, गाड़ी में एकदम लाउड स्पीकर लगा के ढिमचिक ढिमचिक करके गाड़ी चलती थी। तो अभी भी चलते हैं जो लोग अपने होली में एक रंग लगा के, एंड देन दे यूज्ड टू गो आउट एंड देन। तो उस समय मेरे कजन के पास मारुति 800 होती थी। उस मारुति 800 के लिए होली जब का टाइम पीरियड होता था, होली से हम 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे कि होली आ रही है, होली पे हम ये अपना गाड़ी में घूमेंगे अपना कलर वलर लगा के। तो उसके लिए एक स्पेशल लिस्ट बनती थी कि हाँ उधर जाएंगे तो लड़कियां बच्चा होंगी तो उनके लिए हम ये स्पेशली लिस्ट बनाते थे। So I still remember मैं अपने कजन्स को फिर उसमें डालते थे, एंड देन यू नो फिर हमारे मारुति 800 वाज अ कल्ट कार दैट टाइम। सो उसमें फिर बड़े स्पीकर्स लगा के इस तरीके से कैसेट्स में सुनना। एंड while you mentioned about the Walkman, I still remember I could not afford the Walkman because Walkman used to be around 3,000 rupees or 4,000 that time, 2005, and it's pretty difficult for a person like it, मतलब हमारे टाइम पे it was pretty expensive
आज तो मतलब वॉकमैन तो दिखता भी हाँ नहीं है, आज तो हम लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. बट वो वॉकमैन का जो क्रेज होता था ना, दैट्स वेरी डिफरेंट. वो बहुत बहुत लोग डिफरेंट. बहुत फ्लॉन्ट करते थे, लाइक वॉचमैन लगा रखा है और यहाँ पर ऐसे, और तो वो एक अलग स्वैग होता था, लाइक वॉकमैन, भाई वॉकमैन लगा के घूम रहा है ऐसे, तो तो वैसा वो होता था. एक एक It's वो nice. जमाना होता था. एंड वो जो पतले स्क्रीन, वो जो पतली हाँ, सी उसकी सीध होती थी, एंड देन यू यूज्ड टू कीप इट अप, एंड देन वायर होता था, एंड देन यू जस्ट फ्लॉन्टिंग एवरीवन कि हाँ मेरे पास वॉकमैन है. तो एक वो भी जमाना देखा है. फिर उसके बाद सीडीज आई, सीडीज वॉकमैन. का भी, हाँ सीडीज का भी जमाना देखा हमने. आई थिंक मैं तुम भी, you will also agree with me, the way this sudden shift has been, it's totally dramatic. I think it's totally dramatic. मतलब आजकल के मैं बच्चों को अगर आप पूछोगे, आज तक मिलेनियल्स को, क्यूलास, उनको तो मुझे लगता है इतना पता भी नहीं होगा. So I think Correct, correct. right. So I think I that's want to, the end. yeah. You want to conclude anything? नहीं, conclude तो नहीं, but I think there are a lot many things we can talk about music, and I think this is one of the initial step we have taken. I think we started. I know coronavirus period is affecting everyone, and the way that everyone is at home, they're getting a lot of free time. I mean, although everybody is working, you are working, and we are stressed. I think we are overstressed with the work, but that's fine. I mean, after 7 or 8, you still have a time to think, to learn about your own self. And I think this time I realized one thing, that uh, I did not get a time. I never listened to the songs again. I mean, the songs I used to hear I used to listen in the back, 2005 or 6 or 7 or 8. Uh, I've completely lost the touch of those songs. अभी मैं वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था. And now वो दौर दोबारा आया. YouTube पे मैं दोबारा सुनना शुरू किया. Then Spotify है, then आपका Apple Music है. तो मतलब I think it's been like a situation where I've gone back to my those years in the terms of music. Yeah. So I think we can always talk. I mean, there is a lot to talk about, and I think within this time frame we cannot talk so much about it.